everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, and I am your legal reasoning educator and mentor, Damini. तो अब amidst so many speculations of how the paper may change, how the pattern may change, consortium next क्या करने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमें same चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, amidst all of this confusion, there lies a very important thing कि हमें अभी भी CLAT UG examination के बारे में सब पता होना चाहिए. So until and unless an official notification comes out, we have to stick to this, which means जो अभी तक follow हो रहा है. If any notification comes out, definitely we are going to bring it to you. अगर कोई भी change होगा, definitely we are going to tell you about it. But till then, you have to know about some of the basics. तो for some of the people who maybe do not know about it, or some of the people जो शायद और जानना चाहते हैं इसके बारे में, I have brought this video to you. And the very first thing that we are going to talk about today is the eligibility criteria. अब जिन लोगों को नहीं पता है, CLAT UG का जो examination है, as the name says, it's undergraduate. तो undergraduate degree कब होती है? Undergraduate degree is right after we complete our schooling, right? So the basic academic qualification that has to be there, that you should have passed the 10+2 examination. Right now, in some states it is 10 plus 2 years of junior college. In some states it is 10 plus 2, which is 12th standard, right? So any examination where you have cleared 10 plus 2 or equivalent examination of that sorts, अगर आपने वो qualify किया हुआ है तो आप eligible हो. But qualification में minimum marks का criteria है. Now the minimum marks criteria for general, OBC, PWD, NRI, all of these categories generally is 45%, right? तो अगर आपका 45% से नीचे आया है, then you are not eligible to write CLAT UG examination. But if you belong to SC or ST category, then there is a relaxation for you, and the relaxation is of 40%. All right. अब यहाँ पर ना आप देखोगे कि NRI, PIO, OCI ये तीनों categories भी mentioned है. तो marks का criteria इनके लिए भी same है. Now although there are certain rules जहाँ पे universities, NLUs जो हैं वो admission लेते हैं under NRI category. ठीक है, NRI कैटेगरी की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती हैं, एंड दैट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. बट anyone for that matter, even if you are not an Indian national, या मतलब आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, आप NRI हो, आप OCI हो, आप PIO हो, does not matter, you can write this examination as long as you fulfill this criteria. Alright, then what is the age limit? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज लिमिट क्या है? एज लिमिट कुछ नहीं है. Does not matter you are a 60-year-old, does not matter you are a 70-year-old, does not matter you are 18-year-old, आप CLAT UG का एग्जामिनेशन लिख सकते हो. However, अगर what if ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे टाई हो गया है दो लोगों के स्कोर के बीच में या तीन लोगों के स्कोर के बीच में, तो उस टाई के केस में क्या होता है? उस टाई के केस में आता है काम लीगल रीजनिंग सेक्शन के मार्क्स का. ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से टाई ब्रेक होता है. बट बिफोर दैट लेट्स मूव टू द एग्जाम पैटर्न एंड सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो. ठीक है, नाउ इट इज़ एन ऑफलाइन रिटन टेस्ट. अब एग्जाम दो तरीकों से होता है, वन इज़ ऑनलाइन, वन इज़ ऑफलाइन. ऑफलाइन हम सेंटर जाते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, OMR में हमें आंसर्स फिल करने होते हैं. बट ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हमने घर से बैठ के एग्जाम दे दिया. ऑनलाइन में ऑल्सो यू हैव टू गो टू द सेंटर, बट द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होते हैं, विच मीन्स आपको स्क्रीन पे टेस्ट देना होता है. आपको एक सिस्टम अलॉटेड होता है, उस सिस्टम पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आप उसी पे सॉल्व करके आते हो. ठीक है, तो ये वैसा नहीं है. इट इज़ अ प्योर ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन, विच मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको OMR मिलेगा, आपको पेन मिलेगा, आपको रफ शीट मिलेगी, एंड यू हैव टू राइट योर एग्जामिनेशन, फिल दी OMR शीट. ठीक है, लेकिन कितने क्वेश्चंस करने हैं कितने टाइम में? 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं इन 120 मिनट्स, विच इज 2 hours, राइट? सो 120 क्वेश्चंस इन 2 hours, विच अब आपको लग रहा होगा कि यार दिस इज 1 minute per question. But my friend, you are not right about this. 1 minute per question आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ही questions होते हैं passage based. These are not direct MCQ based questions, है ना? तो passage based जब कोई भी question है, it means that you will get a passage of 450-400 words, and उस पैसेज पे बेस्ड आपको मिलेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना है. अब अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, या फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ क्लैट आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस बार आप बस ट्रायल में एग्जाम लिखना चाहते हो, कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको अभी से अपनी स्किल पे काम करना स्टार्ट कर देना है. क्या स्किल काम करनी है हमें? नंबर 1, वी हैव टू प्रैक्टिस कि हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कितना ज़्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं.
है ना, our reading speed. And apart from reading, while you are reading actually, simultaneously are you able to comprehend that as well? आप जब पढ़ रहे हो तब आपको समझ आ रहा है क्या कि आप क्या पढ़ रहे हो, या सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है? So your reading, your comprehension and both of these things well within time limit, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्टार्ट कर देनी है from day one if you are now starting your preparation, be it for this cycle or be it for next cycle. ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ ये जो है मैंने आपको बता दी कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है टू राइट दिस एग्जामिनेशन. नाउ आई ऑलवेज से दैट यू नो क्लैट यूजी इज़ नॉट अ लॉ का एग्जामिनेशन. आपसे कोई लॉ टेस्ट नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि कंसोर्शियम भी कहता है कि वी डू नॉट टेस्ट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ. अब ये तो गूगली है ना, क्योंकि अब लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ मैं, कंसोर्शियम ने जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं. किस बेसिस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि भैया बच्चे को तो ऑलरेडी आता होगा, है ना. अब इवन दो उन्होंने लिखा है दैट दे डू नॉट टेस्ट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, ठीक है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई आपको अपनी प्रिपरेशन वेल विद इन टाइम स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है. तो even though they do not test prior legal knowledge, there's no harm in knowing about it and then going to the center. You have to be prepared for the unforeseen, ठीक है. तो जब आप उस अनफोर्सिन चीज़ के लिए रेडी रहोगे, विच इज़ अपेरेंटली नॉट अनफोर्सिन, अगर आप इसके लिए रेडी रहोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. तो ये एक सिर्फ उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है दैट दिस इज़ समथिंग, बट दिस इज़ नॉट देयर, क्योंकि एग्जामिनेशन में आता ही लॉ से रिलेटेड, लीगल रीजनिंग सेक्शन में एटलीस्ट लॉ से रिलेटेड चीज़ें आती है ना. अगर आप जीके में कोई पैसेज देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जनरल नॉलेज और किसी तरह की लॉ का ब्लेंड रहेगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है. नाउ द मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम ये है कि भाई फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +1 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल गेट -0.25. अब इसका कैलकुलेशन क्या है? इसका कैलकुलेशन ये है कि अगर मैंने 5 to 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, लेट्स से मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. अब नॉर्मली क्या होता है कि 4 क्वेश्चन में से मेरे 2 क्वेश्चन अगर सही हैं तो मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, जो गलत हैं उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलो वो चले गए, गलत है. बट जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो पर क्वेश्चन 0.25 मार्क्स माइनस होते हैं, विच मीन्स अगर मैंने 2 मार्क्स स्कोर किए हैं क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन के 0.25 माइनस हो जाएंगे, विच मेक्स 0.5, ठीक है, 0.50. तो ये जो मेरे 2 पॉजिटिव मार्क हैं इसमें से 0.50 माइनस हो जाएगा और मेरा स्कोर रह जाएगा 1.5, ठीक है. तो पर क्वेश्चन माइनस 0.25 का डिडक्शन रहता है if the answer is wrong, and obviously there is no deduction for the unattempted questions, for the questions that you have not attempted. So before telling you about the tiebreaker part, let's first look at the syllabus, ठीक है. अब syllabus में होते हैं 5 major sections जहाँ से questions आते हैं. English language, current affairs जिसमें static and current दोनों आ जाता है. Then we have legal reasoning, logical and quant, okay. And on an average approximately these are the number of questions. ये जो range है ना, यही range follow होती है जिसमें questions आते हैं, which means for example अगर बात करें legal reasoning section की तो one passage, there will be one passage और passage के बाद 5 to 7 questions आ जाएंगे, ठीक है. और इस तरह के आपके पास 5 से 6 passages आएंगे with each one containing 5 to 6 questions, and this will make an average of this. तो 28 से 32 के बीच में आपको लीगल रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है. तो अप्रॉक्स अगर आप वेटेज देखोगे पूरे एग्जामिनेशन में तो 2 सेक्शंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, विच इज़ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, जीके करंट अफेयर्स स्टैटिक एवरीथिंग उसमें आ जाता है, एंड लीगल रीजनिंग सेक्शन, ठीक है. तो ये 2 मेजर सेक्शंस हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है. बट अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इफ यू हैव टू राइट द पेपर इन इंग्लिश, so firstly there's no language option that you have over there, right? So you have to write the paper in English, you have to attempt it in English, and you don't have a choice. So you have to work on your language as well, right? And while you are working on your language, you are building command on your language, you have to focus on these type of topics more, राइट, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा आती है इस सेक्शन से, राइट. तो अगर आपने इस 20% पे काम नहीं किया, आपने लैंग्वेज पे कमांड नहीं दी, अपनी वोकैब पे कमांड नहीं दी, यू डोंट हैव इंग्लिश रीडिंग स्पीड, यू डोंट हैव कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑफ इंग्लिश, देन नन ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन. नाउ देयर इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन जो क्लासेस में यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि मैम हिंदी में समझाओ, सर हिंदी में समझाओ, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वाइल आई अंडरस्टैंड दैट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ शायद आपको इंग्लिश का उतना एक्सपोजर ना मिला हो, coming from that background it's a little difficult, but if you have to reach where others already are, you will have to put in some extra work.
Okay, so you have to be, make yourself comfortable, you have to make yourself comfortable with this language. ठीक है, तो ये 20% इंग्लिश का आता है, 25% लीगल और जीके का आता है, 20% इज लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली, एंड देन 10% इज क्वांट्स. नाउ दिस इज द सेक्शन जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डरते हैं कि क्वांट्स कैसे करे, क्या करे, मतलब एंड पर्टिकुलरली फॉर मी एज वेल, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस. मी एंड क्वांट्स, वी वर लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, और ये फैक्ट किसी से नहीं छुपा है. मेरे टीचर्स अगर आज मुझे देख रहे होंगे तो वो बिल्कुल मान रहे होंगे इस बात को. ठीक है, बट स्टिल you have to work around it, like you have to figure your way out, right? So this is the syllabus. अब अगर मैं टाई ब्रेकर सेक्शन की बात करूँ तो जब भी दो लोगों के या दो से ज़्यादा लोगों के स्कोर्स टाई हो जाते हैं, विच मीन्स लेट्स से कि दोनों ही लोगों को 100 मार्क्स मिले, ठीक है, तो अब अगर 100 मिले तो उनकी रैंक कैसे डिसाइड होगी? रैंक डिसाइड करने के लिए टाई ब्रेकर कुछ तरीका लाना पड़ेगा. ठीक है, तो टाई ब्रेकर होता है लीगल रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि ये लॉ स्कूल के लिए एग्जामिनेशन है, तो लीगल रीजनिंग सेक्शन इसमें टाई ब्रेकर होता है. तो जिसके भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन दोनों कैंडिडेट्स में, लेट्स से कैंडिडेट ए एंड बी, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आए लीगल रीजनिंग सेक्शन में वो हायर रैंक पे होगा और दूसरा वाला उसके बाद आएगा. नाउ सपोज ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जहाँ पे लीगल रीजनिंग सेक्शन में बराबर मार्क्स है, उस केस में क्या होगा? उस केस में एज क्राइटेरिया रहेगा कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको हायर रैंक मिलेगी, जिसकी एज कम है उसको लोअर रैंक मिलेगी. अब अगर एज भी सेम है, which happens in very rare cases, but if that also happens then there will be draw of lots. सीधा सीधा कि भाई जिसका नाम निकलेगा उसकी रैंक ज़्यादा. ठीक है, अब यूजुअली यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है इशू, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे यहाँ तक आना होता है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाई लीगल रीजनिंग सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. ठीक है, तो ये बात हुई सिलेबस की. अब फटाफट से समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. नंबर 1, सॉल्व पीवाईक्यूज. जितना भी आपको लग रहा हो कि पैटर्न चेंज होने वाला है, कुछ बदल जाएगा, हम पीवाईक्यू सॉल्व करें या नहीं करें, पुराने पैटर्न पर रिलाई करें या नहीं करें, जितना भी आपको ऐसा लग रहा हो, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट कि पीवाईक्यू सॉल्व करना मत बंद करो. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज. अब उनको किस तरह से सॉल्व करना है, इन केस द एग्जामिनेशन चेंजेस, इन केस द पैटर्न चेंजेस, इन केस कंसोर्शियम कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, उस केस में पीवाईक्यूज को कैसे अलग तरीके से सॉल्व करना है, आई विल ब्रिंग यू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. ठीक है, तो जब वो चीज़ होगी तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज रीडिंग वॉल्यूम. एज आई ऑलरेडी मैंशन, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन व्हेन यू आर रीडिंग इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपको एक 450 वर्ड का पैसेज पढ़ना है. और ये लिमिट मैं नहीं दे रही हूँ, ये लिमिट कंसोर्शियम ने दी हुई. कंसोर्शियम ने बोला कि हमारा एक पैसेज जो है वो मैक्सिमम 450 वर्ड्स का रहेगा. अब हो सकता है 200 वर्ड्स का भी आ जाए और हो सकता है 460 वर्ड्स का भी आ जाए, बट आपको इस क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी रीडिंग स्पीड रखनी है, विच मीन्स 5 मिनट में आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज के साथ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ऑल यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस इज इन 5 मिनट्स. सो अब आप देख लो कि आपका आप कहाँ पर हो और आपको कितना ऊपर जाना है. ठीक है, मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि आप फुल लेंथ मॉक्स 5 to 10 पेपर सेटिंग में, विच मीन क्योंकि आपको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप पेन एंड पेपर सेटिंग में मॉक्स दो ताकि आपको रियलिस्टिक एग्जाम एक्सपीरियंस हो जाए. एंड नेगेटिव मार्किंग को हमें कंट्रोल करना है बिकॉज देयर इज -0.25 एज आई ऑलरेडी मैंशन. सो आप वाइल्ड गेसेस भी मत करिए, है ना. अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो वो तभी करो जब आपके पास लास्ट के 2 ऑप्शन बच जाए, व्हेन यू आर श्योर दैट ओके द अदर 2 ऑप्शंस आर डेफिनेटली इनकरेक्ट. ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल वी आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी एग्जामिनेशन. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई भी चेंज अगर आता है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी कमिटी की रिपोर्ट आती है, कुछ भी आएगा, वी विल ब्रिंग दैट टू यू ऑन दिस चैनल. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. और इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में ना बिल्कुल लिख दो कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या डाउट्स हैं, एंड आई एम definitely going to address them. So I will see you guys in another video. Till then, take care, bye bye, and have a very good time.